যে চিত্র বা যে ছবি দেখাবো তা কিন্তু আজকে এই বাংলার বুকে পশ্চিম বর্ধমানে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে। क्या चीज है? ये बहुजनों का जान, भारत का अनुमान सार और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान है। নমস্কার, আমি নয়ন আর আপনারা দেখছেন দ্য লং প্রসেস। এই মুহূর্তে যে চিত্র বা যে ছবি দেখাবো তা কিন্তু আজকে এই বাংলার বুকে পশ্চিম বর্ধমানে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে। কারণ আপনারা দেখেছেন বহু রকম মনীষীদের জন্মদিনে ফুটবল খেলানো হয়, বহু পুজো পাশায় কিন্তু ফুটবল খেলানো হয়। আজ প্রথম ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের বিচারধারাকে সামনে রেখে আজকে এই পশ্চিম বর্ধমান রানীগঞ্জের মহাবীর কল্যাণী, হ্যাঁ সেই রানীগঞ্জ যেখানে মিশন রানীগঞ্জ মুভি কিন্তু বানানো হয়েছিল, আর এই সেই ভূমি যেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু নিজেকে গর্ববোধ মনে হচ্ছে। সাহেব কুটিতে আমি রয়েছি আর সেই গ্রাউন্ডে রয়েছি। চিত্র এই মুহূর্তে দেখছেন। এখানে যারা ফুটবল প্রেমী রয়েছে আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আমরা বাঁশড়া এসডি ক্লাব হয়ে আজকে এখানে খেলার জমাটা মজা নিতে এসেছি, আর সঙ্গে খেলার আপনাদের টিম এসছে? হ্যাঁ এসেছে। কি নাম? এসডিসি ক্লাব। আর তোমার নাম কি? পবন হেমব্রম। ধন্যবাদ। তো এখানে পবন হেমব্রম ওনাদের টিম এসেছে, ওনারা এখানে কিন্তু আনন্দ নিতে এসেছে। আর এটা সময়, ফুটবলের একটা সময়। আর এখানে আরও অনেকে রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু এক এক ফুটবল প্রেমী দর্শক, আর তাদের কাছ থেকে আমি কথা বলার চেষ্টা করব। আচ্ছা দাদা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বাঁশড়া থেকে এসেছি। উনিও বাঁশড়া থেকে এসেছেন, নাম কি? বুবাই সোরেন। ধন্যবাদ। বুবাই সোরেন বাঁশড়া থেকে এসেছে। এখানে একজন রয়েছে আমাদের বয়স্ক করে, ওনার কাছ থেকে আমি জানার চেষ্টা করব। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি এখানে এখানে গেলে কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? নাম দিনেশ। দিনেশ। দিনেশ কি? দিনেশ কোড়া। আচ্ছা, ফুটবল দেখতে ভালো লাগে? হ্যাঁ ভালো লাগে। ওই জন্য এসছেন? হ্যাঁ। ধন্যবাদ। কেমন এইখানে যে খেলা হচ্ছে, তো এটা কি আপনারা করাচ্ছেন না এখানে অন্য কেউ আছে? না, আমরা করাচ্ছি। ধন্যবাদ। তো আপনারা এখানে যে দর্শক রয়েছে যারা ফুটবল প্রেমী দর্শক, তাদের কাছে আমরা যেটা শুনছি যে এখানে বাঁশড়া থেকে এসছে, আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে। আমি প্রত্যেকের যদি আমি নিতে যাই তাহলে হয়তো অনেক এই ভিডিও বড় হয়ে যাবে। আমি জাস্ট এখানে যারা উদ্যোক্তা রয়েছে আমি তাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব, এবং কেন এই ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের বিচারধারাকে তারা সামনে রেখে আর এই খেলা কেন করানো হচ্ছে আমি সেটাও জানার চেষ্টা করব। আমি চলে যাব সেই যারা উদ্যোক্তা এখানে, তাদের কাছে। আমি এখানে যারা উদ্যোক্তা রয়েছে আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব যে এই চিন্তাধারা কেন এলো। আচ্ছা স্যার, এই যে চিন্তাধারা দেখছি এখানে হাড়ি জাতি কল্যাণ সমিতি, তো এই চিন্তাধারা আপনাদের কেন এলো যে এখানে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের, আর এখানে একটা পপুলার মুখও রয়েছে চন্দ্রশেখর আজাদ, সাথে রয়েছে আরও অনেকেই, তো এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আপনার কীভাবে এলো? দেখুন, আমাদের চিন্তা ভাবনা এই কারণে হলো খেলা শুধু আমাদের হাড়ি সমাজ বলে লোক, এটা আমরা প্রত্যেকটা যে আমাদের সিভিল কাস্টে আছে প্রত্যেকটা মানে জাতকে একটা আমাদের বার্তা। আমরা যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা অনেক অধিকারে বঞ্চিত আছি, তো শুধু এক একটা সমাজ যদি থাকা হয় তো সেটা ভাগ হয়ে যাবে। আমাদের বার্তা এটাই যে আমাদের যে যারা আছে তারা যেমন সবাই একসাথে যদি সম্মিলিত হয় তাহলে একজোট হয়ে আমাদের একটা আমরা যে অধিকারের জন্য মানে দিনে দিন যে বঞ্চিত থাকছি সেটার জন্য যেমন আমরা সবাই মিলে সেই অধিকার আমরা নিতে পারি। আপনার নাম? আমার নাম বিজয় হাড়ি, আমি এই সাহেবকুটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের এই হাড়ি জাতি কল্যাণ সমিতি সাহেবকুটির আমি প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ। তো এখানে শুনলেন যিনি উদ্যোক্তা রয়েছে কেন, যে একটা কথা আছে যে সমাজকে একত্রিত করার জন্য যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কিন্তু এই খেলা। আর খেলা একটা মাধ্যম, খুব ভালো একটা মাধ্যম রয়েছে, যেটা এখান থেকে জানতে পারছি যে শুধু জাতিতে আমরা বিভক্ত না হয়ে আমরা একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করব, এটাই ওনার বার্তা। আর যার জন্য এই কিন্তু जाति कल्याण समिति का तरफ से जो खेला का 2 दिन का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह होना चाहिए। और खाली हाड़ी समाज का है, जो भी समाज है
एक साथ मिलकर कोई भी काम करे तो और अच्छा होगा। बौरी समाज है, हाड़ी समाज है, और भी समाज है, सब कोई मिल के एक साथ में काम करे तो अच्छा होगा। ये खेला का प्रदर्शन यहाँ का आम जनता देखे और उपभोग करे, यही बोल के जो है हमारा बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। हाड़ी जाति कल्याण समिति का द्वारा जो 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इन सभी साथियों को मैं दिल से जय भीम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास करके आज इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर संजय हाड़ी, जो कि भीम आर्मी का वाइस प्रेसिडेंट है रानीगंज ब्लॉक का, गौतम हाड़ी, दीपू हाड़ी, शिबू हाड़ी, रिंकू हाड़ी, सोनू हाड़ी, सरवन हाड़ी, राजू हाड़ी, विजय हाड़ी, मोहन हाड़ी, मनोज बावरी, इन तमाम हाड़ी जाति कल्याण समिति के क्लब का साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, हाड़ी जाति कल्याण समिति का द्वारा ये जो प्रोग्राम लिया गया है बहुत ही सराहनीय और क्रांतिकारी प्रोग्राम है। मैं इन सभी साथियों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, आज के इस प्रोग्राम का मुख्य विषय ये है, जब ये प्रोग्राम शुरुआत होने से पहले संजय जी से मेरा बात हुआ कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो उन्होंने हमको बताया कि प्रोग्राम का पर्पस ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट का माध्यम से बाबा साहब और इस देशव्यापी भीम आर्मी का आंदोलन के बारे में लोगों को समझाया जाए। इस मकसद को लेकर के आज ये प्रोग्राम के इन लोगों ने रखा। कि इतना क्रांतिकारी सोच को देख करके हमको बहुत अच्छा लगा और हम पर्सनली संजय भाई का साथ साथ इन सभी साथियों को, आज इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर सभी साथियों, गेस्ट और जितने भी आए हुए दर्शकों को मैं दिल से शुक्रिया और जय भीम कहना चाहता हूँ। साथियों, आज यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श और आंदोलन के बारे में बताया जाए तो दिन भर में खत्म नहीं होगा। साथियों, ये क्या चीज है, ये अगर आप लोग जानोगे तो फिर आपको सारा चीज समझ में आएगा। ये क्या चीज है? ये बहुजनों का जान, भारत का आन बान शान और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान है। आज साथियों, आज हमारे तमाम बहुजन साथियों को जो जान है वो भारत का संविधान के अंदर में है। साथियों, संविधान लिखने के टाइम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो खास बात कही थी, वो बात क्या था कि इस देश में जो भारत का संविधान में, इसको उद्देश्य को ध्यान में रख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो खास बात कहा था, वो बात क्या था कि संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, उसको अमल में लाने वाले लोग यदि सही होगा तो उसका परिणाम भी सही होगा, और संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, उसका अमल में लाने वाले लोग यदि बुरा होगा तो उसका असर भी बुरा होगा। यानी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ये बात कहने का पीछे का कारण क्या था? बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि उस जिस आंदोलन की वजह से, जिस परिस्थिति में संविधान को लिखा था, उनको पता था क्या कि बाबा साहब ऐसे व्यवस्था का शिकार थे जहां सुअर कुत्ता चुने लायक था, बल्कि दलित पिछड़े आदिवासी चुने लायक नहीं था। बाबा साहब को पता था कि मेरा मरने के बाद शायद ही लोग भारत के संविधान को अमल में लाने का काम नहीं करेगा, इसीलिए सब बात सोच करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। आज साथियों, भारत का डॉक्टर अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ जो संविधान है, उसमें तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी का हक अधिकार का बात किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से तमाम साथियों से विनती करना चाहता हूं, आप गीता, पुराण, बाइबल, भगवत पुराण या रामायण महाभारत पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको संविधान का मौलिक अधिकार पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। इस देश के अंदर में पूरा संविधान पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, इस मौलिक अधिकार को पढ़ना समझना सभी भारतीय लेकर एक मूल्यवान चीज उसमें पढ़ना चाहिए सभी को। और साथियों, भारत के संविधान के स्कूल का सिलेबस में पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्कूल का सिलेबस में प्लानिंग करके नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप यदि अपना अधिकार को जानोगे तो अधिकार मांगोगे, क्योंकि आपको अधिकार को छुपाया जा रहा है, आपको अधिकार से हटाया जा रहा है। आप जब तक अपना अधिकार को नहीं समझोगे अच्छी तरह से, तब तक मांगोगे क्या?
तो हमारा सारा अधिकार अगर है SC OBC माइनॉरिटी का, सारा अधिकार भारत का संविधान में है। आपका इस देश में तमाम बहुजन समाज का जो जान है वो भारत का संविधान के अंदर में है। इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसीलिए आज हाड़ी जाति इस कल्याण समिति के द्वारा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया गया है, मैं इसलिए सभी साथियों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोग्राम बहुत देरी से शुरू हुआ, इसलिए समय के अभाव की वजह से बात ज्यादा लंबा हम नहीं टानेंगे। आप सभी लोगों से विनती यही करेंगे, आप लोग भारत के संविधान को पढ़िएगा। इसमें पढ़ने लिखने का, नौकरी का सारा चीज का अधिकार है। आपका भविष्य भारत के संविधान में है। इस चीज को समझिएगा और इस देशव्यापी भीम आर्मी के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा पूरा देश भर में, उस आंदोलन का आप लोग साथ सहयोग करिएगा। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश में संविधान रहे तो अभी भारत में तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग सुरक्षित नहीं है। कहीं पर भी हमारा समाज में ऐसा समस्या होता है तो एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को एकजुट तब ही भलाई है। एकजुट रहिएगा तो आपका ऊपर शोषण नहीं होगा। हम लोग जाति जाति में बांटे रहेंगे तो जाति जाति का बीच में लड़ाई होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो वजह से आज पढ़ने लिखने का वजह से आज हम लोग शिक्षित बने, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब बोला ऑर्गेनाइजेड यूनाइटेड तरीके से करना चाहिए, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए देश में सबसे बड़ा समस्या निर्माण हुआ। इस समस्या से मुक्त पाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आप सभी लोग इसी रास्ते पे चलने का काम करेंगे, इतना आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम।